हाय फ्रेंड्स, दहीसर स्पोर्ट्स क्लब के मेंटर प्रवीण भाई कोकरी, उनके साथी डायस पर महानुभाव, बच्चों, भाइयों और बहनों, मैं एक कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ. आई पेंट ऑन कैनवस, ceramic, glass. I have done pottery for 1 year. Just finished a show last month at Jahangir Art Gallery, and my theme was totally dedicated to Kutch, my memories of Kutch. So I had done a lot of research on natural dyes. I learned batik, block printing, and that's how I incorporated craft into my painting. So I don't know how many of you all paint over here. Do any of you all paint, boys? Solely sports. Anyway, yeah, great. So just the point is that मेरा ये मानना है कि कला, sports, संगीत, it brings discipline in us. It brings a focus, sportsmanship और एक अलग जात का confidence आ जाता है, which I see in the players. There's some shine on their face all the time. Everybody is like accomplished something. It gives a good feel. और इतनी अच्छी संगीत बच्चे देखकर आई जस्ट फील के आज के पेरेंट्स पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं. आई मीन इट्स ऐसा नहीं है कि द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज कॉमर्स, आर्ट, साइंस. हम आज वी कैन डू वंडर्स इन आर्ट, वी कैन बी अ हेयर ड्रेसर. I mean, I think at end of the day it boils down to money and basically passion for whatever you want to do. And I'm really lucky in that case. My family, my son, my husband, my daughter, they really supported, even my in-laws, my parents. There was no compulsion of any sort. So that I'm blessed. Thanks for all that. And just wanted to say, एक तो एक बात थी कि बच्चों अभी तुम 42nd ये टूर पे जा रहे हो. सो कंग्रेट्स टू यू ऑल एंड जल्दी ही आप 50th ईयर के नज़दीक पहुंच जाओ. सो ऑल गुड विशेस फॉर दैट. एंड प्रवीण भाई, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी. I don't think I have done all that great achievement, but thanks for recognizing. And yeah, feels good. Thank you and all the best, everyone. हाँ, अच्छी बात. नहीं, आपने गाड़ी पेंट की है, that which you left out, because that was a very grand wedding. I think so. You've forgotten that. You don't know, but that was one of the biggest wedding ever held in Maharashtra. Which one? The car which you painted for. I painted many cars. The last one which you painted for the Thakurs. Okay. You saw that? No, not saw that. I was one of the part in organizing that marriage. I'll give you a brief idea. Once you speak, I'll tell you what was that marriage. Okay. मैं कार पेंटिंग भी करती हूँ. ब्राइड ग्रूम्स और ग्रूम के गाड़ी, उनकी चॉइस के हिसाब से आई ट्राई एंड पेंट द कार्स. सो हिंदुस्तान टाइम हैज जस्ट टेकन माय इंटरव्यू. इट शुड बी आउट. आई डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू रिलीज इट. सो yeah, and I've been featured on Star News also. They have taken my interview for my work, and that was a small, it was like for half an hour. The clipping was there. It's like I have the recording, but it was 2 years ago. Yeah, my son plays football. My daughter is very good in art. So again, my husband, though he is a baniya businessman, but very much creative. Lot of ideas I get from him because I was dating him when I was in college. So any project that I was getting stuck, we used to ask him. In fact, all my friends used to ask him. It was like, thank you. Sir, you should feel honored. I think you should feel honored. What happens is, हमेशा बात ऐसी होती है कि behind every successful man there is a woman, but here it's the vice versa, that even behind one successful woman, she agrees that my husband is equally. Yeah, Mamta, I just want to tell you exactly for that marriage. It was one of the biggest marriage which is ever held in Maharashtra. 23 acres of land was used for that marriage. There was 1019 couples on one stage, free of cost. And on that very day, the MLA, who was the youngest MLA from Maharashtra, Kshitij Thakur, got married, and 1019 couples were given the entire household material free of cost, and it was attended by more than 5 lakh people. Believe me, 5 lakh people. Yeah, this is an history which has not been told to many of them, but one of the biggest ever marriage which was held in Virar. It was held in Virar East, and
the people from all over Thana, all over Maharashtra. Yeah, the one which you painted, the two cars were painted together. Yeah, the Mini Cooper and the Audi 001. The number of that car is 1. सबसे पहले तो हम आज जिस फंक्शन के लिए यहाँ मिले हैं 42nd क्रिकेट टूर टू औरंगाबाद, उसमें शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जीत कर ही आना है, इसलिए चक दें। जब यहाँ पर बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और कहा गया कि कुछ एक पर्टिकुलर विषय पर आपको बोलना है, प्रवीण भाई ने एक ऐसा विषय दिया है जो हम सबकी रगों में बहता है, पर हम उसे जानते नहीं हैं, कभी उसका एहसास नहीं करते। तो आइए आज एक ऐसे अनछुए विषय की बात करते हैं जिसे मैंने बताया कि इसको हम सभी जानते हैं, पर पूरी तरह से इसे हम न्याय नहीं दे पाते। तो माननीय मंचस्थ और मेरे साथियों, मेरा विषय शुरू करने से पहले बता दूं कि एक ऐसा विषय है जिसे जानते सब हैं पर मानते कितने हैं। और विषय की शुरुआत करने से पहले आइए उत्तर ढूंढने कुछ ऐसे प्रश्नों का, कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को पूरी ईमानदारी से सिर्फ हाँ या ना में देना है, और वो उत्तर भी अपने आप को ही देना है। तो शुरू करें। सबसे पहले बताइए, क्या कभी कभी आप सड़क पर कचरा फेंकते हैं? नहीं, मुझे उत्तर मत बताइए, उत्तर अपने तक ही रखिए। हाँ, सिर्फ हम लास्ट में देखेंगे कि कितने प्रश्नों के उत्तर हाँ है और कितनों के ना। क्या आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हैं और रोके जाने पर ट्रैफिक पुलिस को 100 का नोट थमा देते हैं? क्या आप इनकम टैक्स की चोरी करते हैं? सड़क पर चलते हुए किसी खूबसूरत महिला को चुपके से कुछ देर के लिए झांक लेते हैं? अपना कोई काम करवाने के लिए कभी किसी कर्मचारी को रिश्वत दी है? स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस को ध्वजवंदन करने के बदले उस दिन को मिली हुई छुट्टी का आनंद उठाते हैं? सभी नेता एक जैसे हैं, किसको वोट दें, और मेरे एक के वोट ना देने से क्या फर्क पड़ने वाला है, यह सोचकर मतदान करने नहीं जाते हैं? सिनेमा घर में या किसी और जगह पर राष्ट्रगीत का गान हो रहा हो तभी भी आप आराम से बैठे रहते हैं? और सबसे आखिरी सवाल, क्या हम देशभक्त हैं? आशा करती हूँ कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी से दिए होंगे अपने आप को ही। अगर एक आखिरी प्रश्न को छोड़ दिया जाए, बाकी के सभी प्रश्नों के उत्तरों में से ज्यादातर उत्तर अगर आपके हाँ हैं, तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि जो आखिरी प्रश्न मैंने पूछा था, क्या आप देशभक्त हैं, उसका जवाब ना होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात करना चाहती हूँ, क्या हम देशभक्त हैं इस विषय पर। भारत की क्रिकेट टीम विश्व कप जीत आए, कारगिल के युद्ध में हम विजयी हों, मंगलयान मिशन को हम सफलतापूर्वक पूरा करें, इस सब बातों को सुनकर देश के लिए हमें गर्व महसूस हो, तो हम देशभक्त हैं। पर देशभक्ति के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। देशभक्त उसे कहते हैं जो अपने देश से बेइंतहा प्यार करता है, हर वक्त हर पल उसके लिए गर्व महसूस करता है, अपना तन मन धन देश की प्रगति में लगा देता है, देश के राष्ट्रगीत राष्ट्र चिन्हों का सम्मान करता है। क्या हम सब ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो अब से किया करेंगे। देशभक्ति की बात करते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ, कुछ हल्के से अंदाज में पेश करेंगे। बहुत देर से कुछ भारी भरकम भाषण हो रहे हैं, आइए कुछ चुटकुले से बातें करें। लालू प्रसाद यादव जी हमारे बिहार के नेता, वो अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह से सीखने के लिए अमेरिका चलती है। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी ओबामा जी को फोन करके पूछती है कि क्या लालू जी सही तरह से इंग्लिश सीख रहे हैं, और तब ओबामा जी जवाब देते हैं कि ई ससुरा कभी अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। देखिए, यह है अपने देश के प्रति प्यार। ठीक है, सिर्फ राष्ट्रभाषा हिंदी ही नहीं, राष्ट्र के जितने चिन्ह हो, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय सभी चिन्ह, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसका गौरव करना चाहिए। तो आज मैं यहाँ पे जो उपस्थित हैं उन सभी से वादा लेना चाहती हूँ कि अगली बार जब कहीं हम जाएं और राष्ट्रगीत का गान हो रहा हो, तो जहाँ जिस स्थिति में हो, शिस्तपूर्वक खड़े रहकर उसको सम्मान देंगे। क्या आप देंगे?
स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पर थोड़ा सा समय निकालकर देश का गौरव गान करने और ध्वज वंदन करने जरूर जाएंगे? जाएंगे? सिर्फ हाँ नहीं कहना है, जो बातें मैं आपके कानों में डाल रही हूँ उस पर घर जाके गौर करना है और देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए उसे अपनाना है। अगर प्रवीण सर आपको जो सिखाते हैं और उनके नक्शे कदम पे आप चलना चाहते हो, बहुत अच्छी बात यहाँ से अजय भाई ने कही कि देसा स्पोर्ट्स क्लब और प्रवीण भाई की एक ख्वाहिश है कि आप चाहे नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल लेवल पर ना खेलें, पर आप एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक जरूर बने। ठीक है? गणतंत्र स्वतंत्र दिवस पर ध्वज वंदन समाप्त होने पर रास्ते में जो ध्वज पड़े हैं उसे उठाकर माथे पर लगाकर किसी सम्मानपूर्वक जगह पर रख देंगे। इतना कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी न सिर्फ बोलने का प्रयत्न करें पर शुद्ध रूप से बोलने का प्रयत्न करें। इतना तो हम सभी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? चलिए भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देश प्रगति नहीं करता क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार के लिए कहना है कि मेडिकल, मिलिट्री या मिनिस्ट्री, भ्रष्टाचार ने मचाया हाहाकार। हर घर में है रावण इतने, न मिले दो चार राम। सुनकर गांधी करे पुकार, उनके सपने कैसे होंगे साकार। जी हाँ, आपके प्रवीण सर जो हैं उनकी लिखी हुई इन पंक्तियों पर गौर करें। हमारे देश के अधिकांश लोग देश की प्रगति चाहते हैं, पर उसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा कोई है, वो है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार को दूर करना देश की प्रगति के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाते वक्त आपके मुंह में कंकड़ आ जाए और उसे निकालना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम अपने आप से वादा करें, अपना कोई भी काम करवाने के लिए हम कभी रिश्वत नहीं देंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी हमसे रिश्वत मांगे तो एंटी करप्शन ब्यूरो में उसकी कंप्लेंट कर शिकायत कर उसे सबक सिखाएंगे। हम यातायात यानी कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम इनकम टैक्स पूरा भरेंगे और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। क्या करेंगे? कुछ लोगों का जवाब हाँ में आता है। बच्चों, आप देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते? हाँ, बच्चा पार्टी मैं कब से उन्हीं को देख रही हूँ। यस यस, आई एम विथ यू। वो अकेली लड़की मुझे बोल रही है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। बच्चे, आपको क्या करना है? कचरा कहीं पे भी नहीं फेंकना है, उसे उठाकर कूड़ेदान में ही फेंकना है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका स्वच्छता अभियान जो है उसे सफल बनाना है। सिर्फ बच्चों को नहीं, हमें भी आदत है कचरा यहाँ वहाँ फेंकने की, उसे हम यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे। और सबसे बड़ी बात जो कहना चाहती हूँ कि स्त्रियों का पूरा सम्मान करें। माँ, बहन, पत्नी, कितने ही रूप में वो हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। तो जितना सम्मान हम अपनी माँ बहनों का करते हैं, उतना ही सम्मान हम दूसरों की माँ बहनों का भी करें। तभी इस देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और अपराध कम हो पाएंगे। चलिए, ये कुछ छोटी सी चंद बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जाते जाते आप सभी के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे, अपनी आदतों को थोड़ा सा बदलेंगे और इस देश को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए योगदान देंगे। तो यही कहना चाहती हूँ, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम ना आए तो जिंदगी बेकार, अगर देश के काम ना आए तो जिंदगी बेकार। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने जो बोला है उसकी दो चीजें हम आज ही पूरी करेंगे। एक हमने कर दी है कि आज तक इस डाइस पे सिर्फ, और सेकंड होने के बाद आपको मैं बताऊंगा। श्योरली, इट्स अ प्रॉमिस। भारती बहन प्लीज, आपको जय जिनेन्द्र। मैं भारती महेंद्र संगोई, समाज सेविका और गौ सेविका, और मैं दहीसर स्पोर्ट्स क्लब और प्रवीण भाई से खुश एकदम। प्रवीण भाई ने जो यहाँ पे मेरे को बुलाया उसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ, और यहाँ पे मंच पे बुला के मेरे को जो मेरा शब्द बोलने को मौका दिया, इसके लिए तो ज़बरदस्त मैं उनका शुक्रिया करूँगी। मैं आज 28 साल से समाज सेवा का और गौ सेवा का काम कर रही हूँ, और सायन हॉस्पिटल, वाड़िया हॉस्पिटल, वहाँ पे रोज़ मैं जाती हूँ, और 10 से 2 मैं सायन हॉस्पिटल में बैठती हूँ, जहाँ पे MSW है, सोशल वर्क डिपार्टमेंट है। और आजकल कोई सायन हॉस्पिटल के लिए आने नहीं चाहते,
तो उनके उनके लिए तो मैं पहले कहती हूँ कि आप आओ, वहाँ पे आप देखो, और जो डॉक्टर लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो मैं अभी भी सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उनका जो काम है वो इतना अच्छा से कर रहे हैं। प्राइवेट में जाते हैं सब लोग, लेकिन प्राइवेट में जाके थक के लास्ट में वो लोग आते हैं सायन हॉस्पिटल में, तभी उनको टाइम नहीं रहता है कि हम लोग कुछ कर सके। लेकिन जब ये स्टार्टिंग पॉइंट रहता है तभी आप सायन हॉस्पिटल में आके देखेंगे तो वहाँ पे मरीज का अच्छा से अच्छा इलाज होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो होता ही है, लेकिन आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना अपने लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीडी पेशेंट जो है वो कहाँ पे जाएंगे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए ही आएंगे। तो एक बच्चा जो था 40 महीने थे सायन हॉस्पिटल में पड़ा था, उसको 2 दिन हुए, मेरे को सिस्टर ने बताया कि ये लड़का है, उसका माँ बाप नहीं है और वो चल फिर नहीं रहा है। तो मैंने वो लड़के के साथ बात की, दूसरे दिन से ही उसके साथ मैंने बात की, और उसने बताया कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं झारखंड से आया हूँ और यहाँ पे मैं काम के लिए होटल में आया था। मेरे मम्मी पापा ऑफ हो गए, मेरा छोटा भाई है, जो छोटा भाई है वो गांव में पढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ से पैसे भेजता हूँ। तो गिर के वो हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ, तभी से इतना रोता था कि उसको इतना दुख लगा कि मेरे पास तो 2 रुपया भी नहीं है, तो मैं मेरा इलाज कैसे करवाऊँगा। तो मैंने बताया उसको कि भाई तेरे को मेरे पे विश्वास है ना, तो फिर अपन आगे बात करते हैं। तो बोला ठीक है। मैं आगे डॉक्टर के साथ बात किया, डॉक्टर आर्गेकर सर सायन हॉस्पिटल के, जिन्होंने मेरे को वादा दिया कि ये लड़का जब तक चल नहीं सकेगा तब तक हम और आप दोनों मिलके उसका इलाज चालू रखेंगे और अपन काम करेंगे ऐसा कि वो लड़का खड़ा हो जाए। तभी जब भी मैंने उनके साथ मीटिंग किया तो उन्होंने 4 लाख रुपए बताए। अभी एक बच्चा बोलता है मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तो 4 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा। तो मैंने सर के साथ बात किया, मेरे को थोड़ा वक्त दो, वो वक्त में मेरे को जो भी मेरे से काम होगा पैसा जमा होने का, तो अपन उसको इलाज कराएंगे। तभी मैंने स्टार्ट किया पैसा जमा करने का। तभी सर और दूसरे डॉक्टर, केएम के डॉक्टर आए थे, लीलावती के डॉक्टर आए, सभी ने बोला कि इसका हिप्स रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो हिप्स रिप्लेसमेंट के लिए 4 लाख रुपए लगेंगे। तभी सर के साथ बात करके मैं बोली मेरे को तो जमा करना है, तो 4 लाख कहाँ से लाऊंगी मैं। तो उन्होंने सब, सर ने, डॉक्टर ने, सबने बात करके 2.5 लाख में उसका तय हुआ ऑपरेशन। 2.5 लाख का ऑपरेशन तय हुआ, तभी से मैंने पैसा जमा करना चालू किया। 6 महीने में मैंने 2.5 लाख रुपए जमा किए। बाद में उसको ऑपरेशन करवाया। पहले एक साइड का ऑपरेशन हुआ, फिर डॉक्टर बोले 1.5 महीने के बाद अपन दूसरा ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि एक ऑपरेशन बराबर नहीं होगा तो अपने को विकट आएगी, तो वो चल फिर सकता है कि नहीं, पहले देखना है। तो 6 महीने के बाद दूसरा ऑपरेशन उसका हो गया। दोनों पैर उसके आज चल फिर सकते हैं। और मेरे एक जीवन आधार संस्था है जिससे मैं जुड़ेली हूँ, उधर वो लड़के को रखा है, आज वो चल फिर सकता है और पढ़ाई भी करता है। और मेरा मानना ये है कि आज मेडिकल और शैक्षणिक, ये 2 चीज़ों के लिए आदमी को किधर किधर भटकना पड़ता है। तो पहले तो आदमी को शैक्षणिक चाह नहीं मिलती है तो वो पढ़ नहीं सकता है, और मेडिकल के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी मदद ले, और उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा है तो आप उसकी मदद लो। यहाँ पे इतना ही है कि ऑपरेशन के लिए जल्दी हम लोग को पेशेंट के लिए जल्दी नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी इतना अच्छा काम हो रहा है MSW सोशल वर्क डिपार्टमेंट से, सायन हॉस्पिटल से। तो हम लोग जितना भी होता है उतना जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाते हैं। आज 200 से 250 ऑपरेशन मैंने करवा लिए हैं, और अभी भी और मेरा ऑपरेशन सब चालू है। हार्ट का 200 ऑपरेशन आज तक मेरे हाथ से हो गया है। वाल का, बायोपास का, एंजियोप्लास्टी, डायलिसिस, किडनी के 3 पेशेंट 15 साल के, 28 साल के, उनके भी ऑपरेशन हो गए, और भी ऑपरेशन चालू ही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके सहाय लीजिए। और मेरा पहले तो ये बात है कि इसमें मेरा घर, कुटुंब और समाज तीनों मेरे साथ है। पहले तो मेरे पति यहाँ पे आए हैं, महेंद्र भाई संगोई,
इनका मेरा सपोर्ट बहुत ही है, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ उनमें उनका पूरा सहयोग है। बाद में मेरा कुटुंब भी उतना ही मेरे को सहयोग करता है। और समाज तो अभी मेरे को 8 महीने से मैं समाज में भी काम करती हूँ। हर बुधवार को 4 से 7:30 सायन हॉस्पिटल के सामने डालडा कंपनी के उधर हमारा ऑफिस है, कच्छी जैन फाउंडेशन। उधर मैं मेडिकल सहाय के लिए बैठती हूँ और हर रोज मैं सायन हॉस्पिटल में 10 से 2 रहती हूँ। और मैं तो पहले धन्यवाद करूँगी प्रवीण भाई का कि आज मेरे को ये इधर मंच पे आने का मौका दिया और मेरे जो शब्द है लोगों तक पहुँचे और लोग इसकी मदद ले, यही मैं चाहती हूँ। और प्रवीण भाई को भी कहती हूँ कि कोई भी ऐसे मरी जाए जहाँ पे उनका जरूरत हो तो मैं उनको जरूर मदद करूँगी। और इन 2 शब्दों के साथ मेरा धन्यवाद मैं करती हूँ। भारती बहन, थैंक यू। आपकी फील्ड में भी आपने डबल सेंचुरी लगाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईला बहन, जय जिनेंद्र आप सबको। दहीसर स्पोर्ट्स क्लब affiliated to the Mumbai Cricket Association, we are very grateful हम सभी तरफ से। आज ये जो समय दिया गया था, जो इनविटेशन कार्ड आया प्रवीण भाई के पास से 6 बजे का था और उन्होंने 2 महीने पहले हमारे सबके साथ बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया था। जब इनविटेशन आया वो तो 1.5 महीने के बाद आया, अभी हफ्ते 10 दिन पहले। तो मैंने उनको पूछा प्रोग्राम 6 बजे का है, आप 2 बजे घर से निकलने की बात कर रहे हो, तो ये क्यों? तब उन्होंने कहा कि आप आओ तो सही, आपको कुछ तो समझेगा, हमारे और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो पहले 2 बजे वहाँ से निकल के घर से, यानी सेंट्रल मुंबई माटुंगा से निकल के हम इनके घर पहुँचे, उनका म्यूजियम देखा, उनका सारा कलेक्शन, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैंने 2 साल पहले भी देखा था, लेकिन हर बार जब देखते हैं तब कुछ नया पाते हैं। तो वैसे ही कुछ अनुभव हमारे आज हुए। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल है, उनमें जो मैडनेस बोलते हैं, कच्छी में हम बोलते हैं गांडो मारो, चर्यो। तो ये हमारे जैसे कोई होते हैं चर्या, वैसे ये भी एक चर्या ही है। उनको एक बोलते तो मैडनेस है, पैशन तो है ही, लेकिन उनको एक बहुत ही, मैंने उनके जो कलीग्स हैं जो हमें वहाँ तक लेकर आए, मैंने उनको कहा अगर कोई स्कैनर हो तो उनके नर्व्स का कुछ चेकिंग करना चाहिए, क्योंकि ही हैज गॉट सच डिस्टिंक्ट क्वालिटीज कि दीज क्वालिटीज आर, आई डोंट थिंक रेयर, दे आर इम्पॉसिबल टू फाइंड इन एनीबॉडी एल्स। और मैं अब भी जो भी बात कर रही हूँ, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग, जो अब मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, ही इज पैटिंग हिज वाइफ देयर, ऐसे ऐसे करके मैं देख सकती हूँ, इसके लिए मैं कह रही हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू प्रवीण भाई कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और मेरा तो सद्भाग्य है कि मुझे ये सारी महिलाओं से, वो आर सो ग्रेट इन देयर ओन वर्क, जो अपने अपने फील्ड में जो बहुत ही कुछ अच्छा काम कर रही हैं, उनसे मिलने का भी एक मौका मिला। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। यहाँ पे अपनापन लग रहा है, प्रवीण भाई ने कहा था बाकी कम्युनिटीज़ के भी होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अपनापन लग रहा है, क्योंकि हमारे केवीओ के ही लोग दिख रहे हैं मुझे। हर जगह पे जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे सारे केवीओ दिख रहे हैं, और इसमें भी मेरे केवीओ सेवा समाज के कलीग्स काफ़ी दिख रहे हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने ये माहौल पे हमें बुलाया। माई विशेस टू द पार्टिसिपेंट्स जो 42nd ईयर ऑफ दिस एसोसिएशन, जो 42nd टूर पे, औरंगाबाद के टूर पे जा रहे हैं, माई हार्टीएस्ट विशेस टू यू। आप जीत कर के तो आओगे ही, लेकिन जीत कर ना भी आओगे
तो भी बहुत ही प्यारे हो। द एसोसिएशन नीड्स यू वेरी मच। अब बहुत ही फोकस करके जाओगे, अपना गोल सेट करके जाओगे। हमारे जैनिज्म में जैसे बातें करते हैं मोक्ष, आपको वो मोक्ष समझ के वो प्ले करना है। और जो भी मैंने प्रवीण भाई से जो ये चंद घंटों में मैंने जो सीखा है, उनमें जो गिविंग का जो सेंस है, वो खुद तो खेले ही है, नो डाउट, सिखाया भी है, बट उनका जो हिस्ट्री प्रिजर्व करने का जो एक अलग सा जो तरीका है, इतना ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन एनीबडी बी सो ऑर्गेनाइज फॉर सो मेनी इयर्स। आज कुछ दिल करता है तो कल कुछ तो चेंज हो सकता है, but he has not changed his mind for 42 years. He's still got that goal and that focus within him. I think it's really worth an appreciation. सारे स्पोर्ट्स सेक्टर को जो प्रवीण भाई आज जो बना रहे हैं, the history that he's creating and preserving, I think उसकी जो वैल्यू है ना, after some years people will, I think, value it more. जो अभी इस चीज उससे बहुत गुना ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए आज। इट इज समथिंग विच यू जस्ट कांट, यू कैन से यू कैनॉट मेजर इट, इट्स इमेजरेबल। तो आई एम सो हैप्पी कि हर टूर में ये बच्चों के साथ जाते हैं एंड ही इज इंटरेक्टिंग विद द यंगेस्ट ऑफ द प्लेयर। ये सबसे बड़ा, आई थिंक द पेरेंट्स शुड बी सो हैप्पी दैट यू हैव a God for you, with you, a God in sports who is accompanying your children and who is mentoring them right from the beginning to end. So I think in every word that I'm going to speak, I'm going to focus on Praveen Bhai somewhere or the other, because I have learned something, not only today but I've been learning since the time I've met you. हमारे सेवा समाज के काफ़ी सालों से जो मैचेस खेल रहे हैं, प्रवीण भाई तो हर टाइम पे वो होते ही हैं, वो और उनके सारे जो टीम मेंबर्स हैं, लेकिन इनमें जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं वो सबसे हटके हैं। मेरा तो और भी रिश्ता मुझे पता चला, आपकी बेटी भी हमारी एलुमनाई है, ये भी हमारे रिश्ता, प्रियंका का रिश्ता आज ही भी यहाँ पे पता चला। सो आई थिंक, और उनके ही बगल में बैठी हैं वो हमारी फिलोसफर बहन हैं जो अभी PhD कर चुकी हैं फिलोसफी में। सो वी आर वेरी ऑनर्ड कि ऐसे लोगों के साथ हमें आज बैठ के ये मौका मिला है। वन थिंग दैट आई विल लाइक टू टेल यू ऑल, दैट स्पोर्ट्स के लिए जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, स्पोर्ट्समैन जो बैठे हैं यहाँ पे, वन थिंग आई विल टेल यू इज दैट स्पोर्ट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे छोटे के साथ बड़ा और बड़े के साथ छोटा साथ में परफॉर्म कर सकता है। एंड यू हैविंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, एक दूसरे के लिए को बढ़ावा देने के लिए, ये एक प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन डू इट। और जब जाएंगे तब एज वाइज सब अलग अलग हैं, आई एम श्योर, जो एंड आई एम श्योर दैट यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं उनको जो एंजाइटी है, वो जैसे टूर स्टार्ट होगी, वो जो एल्डर एज में होते हैं वो उनके पेरेंट्स हो जाते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देम। सो पेरेंट्स में एक्चुअली अकस्टम, पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स में इतने अलग एज से जाते हैं। और प्रवीण भाई में जो मैंने एक और क्वालिटी देखी है कि जो चैलेंज्ड है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जिनका यहाँ पे सम्मान किया गया, ऐसे लोगों को भी जो उन्होंने पुश करके प्लेइंग फॉर इंडिया इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज बहुत ही कमेंडेबल है इन दोनों के लिए। आई थिंक वी ऑल नीड टू अपलॉड फॉर देम। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, बहुत ही हिम्मत अपने हैं, और प्रवीण भाई का पुश तो जरूर है, आपके साथ है। यू हैव रीच्ड दिस प्लेस एंड आई एम श्योर यू विल हेल्प अदर पीपल हु नीड योर सपोर्ट। एक बहुत अच्छी बात मुझे आज और सीखने मिली, प्रवीण भाई के साथ जो विजिट कर रहे थे, तो मौका कभी हुआ कि हम प्रवीण भाई के साथ चल रहे थे, तो एक बात मैंने ऐसे उड़ते उड़ते सुनी कि वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए स्पोर्ट्स खिला रहे हैं।
ऐसे कितने लोग होंगे, हम तो सारे माटुंगा में रहते हैं और वहाँ पे बड़े होते हैं, हमें पता है कि जिसके पास जेब में पैसा है वो स्पोर्ट्स खेल सकता है, am I right? पैसे नहीं है वो स्पोर्ट्स उनके लिए है ही नहीं. Probably they can play those informal sports if you want to call them sports. But formal sports अगर खेलना है तो you need resources and money is the biggest resource. And I think ये जो सारी सोच है आपकी टीम की ये बहुत ही अच्छी है. And I would really like to congratulate the entire association for this, the club for it. And I really wish you have this inclusive program. And I'm sure कि आपके जो sportsmen है यहाँ पे, can I have your hand raised? All the sports people who are going to Aurangabad. Yeah, sorry. Yeah. I'm sure कि आप इसमें से कुछ और भी सीखेंगे and people who are in need, you will definitely keep them always in mind. So it is a very special thought that you have for the street children and I would really congratulate the entire team for that. ये बहुत अच्छी बात है. KVO सेवा समाज से मैं यहाँ पे आप सबको बहुत ही मेरे अच्छे विशेस कर रही हूँ टू द एंटायर टीम एंड आई नो कि आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाने के लिए औरंगाबाद. आप बहुत कुछ Eleven, really, thanks for the words, the wisdom words you have used. There is one thing which is not at all been told publicly, and I'm very sorry that we have not told anybody, but since you have spoken that, I'll just tell you one thing. Dahisar Sports is not only looking into cricket, we are also giving scholarships to the needy children, which is not openly being told to anybody. It is within the club that some boys and girls are being selected, those who cannot afford for their education, and that the entire cost, whatever he spends, is been given by the club and not been disclosed to anybody or any of the club members. I just like to add कि जब मैंने आज जो विजिट की दहीसर स्पोर्ट्स क्लब में one more thing that I have missed out and I don't think it's appropriate to miss out. I must mention this कि हम जब विजिट कर रहे थे हम उनके जो कबर्ड्स हमें दिखाए गए थे उस कबर्ड्स में जो स्पोर्ट्स मटेरियल था बहुत ही सेंसिटिव फीलिंग्स के साथ प्रवीण भाई एक्सप्रेस कर रहे थे कि बच्चे जब आते हैं तो उसका प्राइस बता रहे थे कि ये बॉल 500 रुपए का है, ये इतने का है, व्हाटएवर ही वाज एक्सप्लेनिंग द कॉस्ट ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल. लेकिन जब यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलने के लिए जब बच्चे आते हैं उनको खाली हाथ आना है, हम उसको रिसाइकलिंग करते हैं. द गुड्स रिमेन विद द क्लब. बच्चा जब आता है खाली हाथ आता है उसको स्पोर्ट्स खेल के जाना है. सो यू डोंट नीड टू रियली स्पेंड. इट इज़ अ वेरी गुड फैंटास्टिक सिस्टम. ये तो बहुत बड़े क्लब में भी मैंने नहीं देखा है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग and there is no doubt that you are one of the 325. I don't know, I missed the number. Pardon? You are one of the 329 29, yeah. clubs which are associated to the Mumbai Association, and of those, you are one of the exclusive club considered. I mean, there is no doubt about it. We are quite convinced by it. हमने तो आज एक ही दिन आए हैं, शायद और भी आएंगे तो और भी कुछ देखेंगे हम. Thank you. You rightly said regarding the goal, the next 6 years which is left of the Silver Jubilee, which I will be celebrating with my club, because Golden Jubilee we will be doing it. Silver Jubilee we did it when Mr. Manoj Joshi became the Chief Minister of Maharashtra, and it was held at Kohinoor Hall, Dadar. But this year it is very well confirmed that the Silver Jubilee was held at Dadar, but the Golden Jubilee will be held only in Dahisar, and we are not going to go beyond Dahisar to do it. Anywhere, either in Borivali, or Dahisar or Kandivali within this area, and surely we will be doing it at a very big scale. We are insisting, Praveen bhai, that it should be a 1 week program whereby we can invite people of all the age groups differently. Very unique thing regarding the tour I would like to tell you is this tour is a national tour, and within the 6 years which is left out, we all look forward to have one international tour out of India. So this is the next goal of Mr. Praveen Gogri, which he has kept in his mind. And surely I will be a part of it. And the unique thing which we want to do is, this will be a combination of father and son. Like if the
mementos which will be given to all the boys who are going for the tour. So that remains a memento in your mind that yes, I had been for the 42nd tour and I should preserve that. So the ladies, all the females will have to come in front, because from there it will not be possible to hand it over to them. So if you can please come forward, we can give one by one to all of them. We'll start with the most junior players first. थोड़ा मेरा भाई पीछे आओ ना, थोड़ा थोड़ा बस बस बस, थैंक यू, ओके थैंक यू। बेडरूम जा बेटा, गाय क्यों कर रहा है? तुम लोग सब खाओ, खाना खाओ। जिंदा है तुम्हीं से नाम प्यार का, रिश्ता है तुम्हीं से तुम्हार का,
जिंदा है तुम्ही से नाम प्यार का जीना इसी का नाम है पहिले